So, good evening. Good evening, sir. Today we're going to start Unit 2, that is Philosophical Foundation of Ethics. Okay, we're going to start this one. Philosophical Foundation of is ethics. It means that where is the existence of ethics, from where the ethics has been come from, what is the means aspects of this ethics, means otherwise, what are the fundamental aspects of the existence of human ethics. Okay, so we will going to learn this, and apart from that, we will going to explore the principles and values. Okay, not only principles. See, principles. May the author can write the word principle, but no, he has mentioned or he had add an extra word, moral principles. So principles are of two types, maybe, that is simple principles, that is which we follow in our daily life, but another one is the moral principles. Okay, this one is, we are having some different things, we are having some different objectives. Okay, so so explore moral principles and values, so guiding our actions and shaping our societies. And this moral principles, always remember one thing, that this will going to guide us our near future, this will going to guide us or for shaping our character, for shaping our behavior, for shaping our societies. Okay, so this presentation delve into the philosophical foundation of ethics, exploring its various branches and applications. So we will going to learn what are the exploration, where the ethics can be explored more and more, how the today's industries world or organization world based or basically they wanted this principles. Now, before I start this further discussion, I want to give you some reference and example of all this, why this specific chapters are nowadays became necessity. You don't know, or I don't know whether you know or not, nowadays in many engineering colleges, okay, I mentioned in many engineering colleges, there is one means particular subject. Now, means the university has UGC has means uh, recommended that every colleges and university need to teach this particular chapter, particular syllabus, and it is very compulsory paper. Not this that it is an optional paper, but it's a very compulsory paper, and every students and every teachers need to follow this. And apart from that, every colleges and university had to enroll this subject or enroll this paper in their curriculum, in their courses and curriculum. And what is that name of the chapter? IKFS. That is IKFS. I forgot that full form. Indian means where we can learn Indian knowledge system. Sorry, IKFS means Indian knowledge system. Where in this particular paper, Indian knowledge system, the students will going to learn where what is Vedas, what is yoga, what is meditations, okay, what is moral ethics, what are the principal values of moral ethics. Okay, so how to means overcome this stress. Okay, these all the things now students are learning. Why this has been enrolled or why this has been included. And this particular paper has its own practical classes also. Though the paper is theoretical, but UGC has suggested every colleges and every university to need to follow this paper very strictly, this syllabus very strictly. Every university, every colleges had to take the exam of this. Apart from that, they will you need to take the external viva on this paper.
Indian law, everywhere. It has been spread now everywhere. UGC recommending this chapter means all over the India, the number of colleges are following this syllabus. You cannot opt this. You cannot keep it optional. Okay. Now, why this chapter is very important? Do you know that? Because many colleges and especially engineering colleges, students are committing suicides. Whether you know or not, I don't know. Whether you know or not, I don't know. Means a stats is there. There is a stat or graph is there where it shows that every year, every year, the suicidal case is increasing day by day. Every year, the increasing. Before the results or after examination, the students are committing suicide. Must much more because they feel themselves that okay, this is the last option for us. If we cannot pass out the examination, means everything is lost for us. The life is now, the life is gone. There is no other subsidiary line or subsidiary path remain there. Anyhow, they commit suicide. This is the problems nowadays, and for that reason, this year from 2023, this paper has been included in every chapter. Why it is doing this all thing? Just to build the awareness, necessity, increase the moral values, principles among the students, among the faculties, among the non-teaching staff, everybody. And this practical is very much important. Do you know the practical means every Saturday, each and everything is mentioned over there. On every Saturday, weekdays, you need to have every colleges had to conduct a means yoga, okay, for 45 to 1 hour. It's compulsory. It's compulsory yoga, meditations, this all this, just to improve the uh, quality of the students, just to improve the thinking quality of the student. Okay, because nowadays students has a very negative perceptions in their mind. Wherever they thinks that we cannot get succeed, we are failing, we have been dropped, means they commit suicide. There is only one way remained for them, that is to commit suicide. And for this reason, this paper then started. Okay, now come to the another part. Why this paper is very important, apart from the MBA also, ethics, business ethics, all. Recently, the trend is now going on. Whether you know or not, I don't know. The trend is going on that every employees should work on Sundays also. And this issue is been raising so much. The voice has been raised so much that now every means, especially in Bangalore regions, the companies are changing their working schedules. Schedule. Recently, L&T, Larsen and Toubro's chairman declared employees that I will be much more happier if my employees work on Sundays also. This was the statement he has given. In few days back, a few months back, I was telling, recently on a news that has been very viral new information news was there, and it was been spread even on all of medias and all, that HDFC Bank's means general manager is criticizing his employees with harsh word, with rough words, because they have failed to meet up the targets that has been set. And now their manager is advising their employees to work for 12 hours and more. Because, and it is also been strict instructions to the given to them that think that the campus of this particular environment of a bank is your home. So you need to stay almost 12 to 14 hours a day, every day here. No holidays. Now, this is the thing is going on. And this is the things happening. Why? Because principle is there, but with principle, no morality is there. That is why here the author used the word morality with principles, moral principles, because principle is everywhere there. Strict time, strict routine, strict work, each and everything is according to the principle. Strict your dress codes, each and everything is there. But with moral, where is the moral? Moral is nowhere.
and this is now on ending phase. So this type of statements now are it's coming. Okay, but yes, some companies are there who are taking the initiative to decrease the pressure of the employees, work pressure of the employees. Recently, there is also a news that was in it was been spread in the month of 2024 that a simple 21 years old girl working in a software company committed suicide because her boss told him that a next day from onwards you need to work for 14 hours because you have failed to complete your assignment projects and whatever the task that has been given. So on that very day, after completing her work, she committed suicide because of the work pressures. So principle is there, but morality is absent. Okay, now if these things goes on, the work culture of our Indian will suddenly it will you see there is a lot of drastic changes will going to come it out. There will be a lot of drastic changes will going to come out if this going to happens, and everybody will going to suffer for this. Everybody will going to suffer. Means everyday work 24 into 7, no holidays, no special holidays and all that will be allowed. Come and do your job. Okay, so government now trying to means make some rules and regulations for this type of companies so that the employees will not going to get harassed in the hands of the management. The government is now coming with lot of rules are there. Okay, that this is much working hours will be there. Within this working hours you need to be very strict. More if you want the employees to be work more extra over duty, that can only be permitted for 1 and 2 days, not more than that, with special remuneration to be paid extra to that particular employee because they're working. और 2 से 3 दिन से ज्यादा वो इस तरह का काम नहीं करेगा. बहुत सारा रूल्स नॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाया है. स्ट्रिक्टली हाईकोर्ट ने इस चीज को मान्यता दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका पक्ष में बात गया है. अब बहुत जगह इस वर्क एनवायरनमेंट को वर्क कल्चर को रखा जा रहा है. अगर आपको फॉर 12 आवर्स काम कराना है तो ओनली 4 days the employees will come to office for 4 days only. Remaining 3 days will be holiday. No extra work will be available on to them. अगर आप 12 घंटे काम करवाते हो ऑफिस में, इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग सिर्फ 4 ही दिन एम्प्लॉइज आएंगे आपके ऑफिस में. अटेंडेंस बनेगा सिर्फ 4 दिन का, उससे ज्यादा नहीं. हाँ, अगर आप ओवर टाइम करवाते हो उसके लिए सिर्फ 1 से 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं आप करवा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके लिए एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पेड करना पड़ेगा. यू आर बाउंड टू गिव. स्पेशल नंबर्स आर देयर. अगर कोई कंपनी आपको टाइम सैलरीज नहीं दे रहा है, विदाउट प्रायर नोटिस आपको निकाल दिया है, आप उस अगेंस्ट में केस कर सकते हो. एंड केस विल बी ऑन बिहाफ ऑफ यू. आपके ही फॉर्म में जाएंगे वो केस. आपके केस आपके फॉर्म में जाएंगे और एम्प्लॉइज मतलब बहुत बड़ा मतलब उसके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा, बहुत बड़ा एक्शंस लिया जाएगा. दीज आर द चेंजेस दैट कम्स ऑन. ओके, ठीक है. लेकिन क्या है कि एक तरफा चेंजेस होना ठीक नहीं है. कभी कभी क्या करते हैं, इसका फायदा गलत एम्प्लॉइज भी उठाते हैं. द एम्प्लॉइज समटाइम मिसयूज दिस पावर्स एंड दे ट्राई टू polarize in their own way. ओके, सो ये भी देखना है. बात जब उठा था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब ऑर्गेनाइजेशन में इसका बात रखा था कि सर इसका क्या है कि एम्प्लॉयज इसका गलत फायदा ना उठाए. तो इसका भी रास्ता निकाला है कि आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, आप बनाइए, मैंडेटरी कीजिए. बहुत कुछ चेंजेस अभी हुआ है. ठीक है. सो it is very very important that ethics should be the aspect of human existence. And apart from that, if you are maintaining any principles, if you want the employees to follow the principle, then it should have moral principles, not than that. Okay, ma'am, please go to the next slide.
Yes. Now, the next is customary morality and reflective morality. Now, we will going to understand what is customary morality. देखिए, morality भी बहुत तरह का है. आप इस चैप्टर्स में जानिएगा कि मोरालिटी कितने तरह का है. There is one customer morality and another one is called a reflective morality. I'm sorry, it's reflective morality. Oh, okay. So what is customary morality? Customary morality means it is an unwritten, just like an unwritten constitution or just like unwritten rules and regulations that are generally being followed and that are followed with the communities. मैं इसको थोड़ा सबको समझा देता हूं. It will might be clear to you more and more with some, if I going to give you some reference of it. First करो, आप ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पिछले 25 सालों से एक ही नियम फॉलो किया जा रहा है. क्या है फॉलो उस नियम का है कि शिफ्ट ए वाला जो, जैसे फॉर एग्जांपल 9:30 बजे तड़के आपको ऑफिस आना है, 9:30 बजे मॉर्निंग आपको ऑफिस आना है, 4:30 बजे आपका छुट्टी. पिछले 25 सालों से ये चला आ रहा है. 9:30 to 4:30, 9:30 to 4:30, 25 साल. इसमें कोई चेंजेस अब तक नहीं हुआ है. इसमें कोई बातचीत हुआ ही नहीं है. इसमें कोई प्रपोजल्स आया ही नहीं है कि इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए या इसे थोड़ा सा घटा दिया जाए. ठीक है, ये प्रपोजल कभी नहीं आया है. ठीक है, तो ये पिछले 25 सालों से चला आ रहा है. एक और एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन है, पुराने एम्प्लॉइज है, अभी भी उनको सैलरी जो होता है इन हैंड मिलता है, नॉट थ्रू एनी मींस थ्रू बैंक्स that he or she can withdraw it from ATM and all. उस तरह का फैसिलिटीज नहीं, या चेक फैसिलिटीज, nothing like that. Still now many more many companies are old, renowned companies are there and old employees are there working over there. They are still now been getting the salaries in hand, cash in hand, also in, that is in cash, which is in hand, and also in hand. So this is called the customary morality. Means वो चले आ रहा है. ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल बुक में नहीं है कि आपको कैश, आपका जो सैलरीज बनता है वो आपको हाथ में दिया जाएगा. ऐसा भी नहीं है. कुछ भी चेंजेस अगर, मतलब ऐसा भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल्स बना ही नहीं है कि आपको 9:30 ऑफिस आना है, 4:30 में निकल जाना है. कभी जरूरत पड़े 5 बजे रुकना है, मतलब नहीं रुकेंगे. ये दिस टाइप ऑफ अनरिटन लॉज विच इज कम्स अंडर कस्टमर मोरालिटी. ये एक तरह का मोरालिटी है. ओके, क्यों? ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक इस चीज को उसी तरह से चला आ रहा है, उसे चेंज नहीं किया है. उनको लगता है अगर हम चेंज करने जाएंगे, हो सकता है इसका कुछ बैड इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़े, तो उस जगह पर वो छेड़खानी करना नहीं चाहते. तो इस तरह का जो मतलब अनरिटन रूल्स है, उसे हम कस्टमरी मोरालिटी कहते हैं. ऑलवेज अंडरस्टूड. इसलिए मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन with an examples. I have tried to explain it to you so that whenever the question comes, you can remember or you can memorize the example that I have given to you during the online classes that was going on. Okay, so that it will be quite clear to you the exact meaning of customer morality. Customary morality, customer का मतलब क्या है? एक ट्रेडिशन चला आ रहा है. There is another important meaning of customary is traditional morality. Traditional morality. ओके, नाउ एक और चीज यहां पर है. दीज ट्रेडिशंस पास डाउन थ्रू जनरेशंस. जैसे मैंने बताया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही रूल्स एंड रेगुलेशन, वही नॉर्म्स चला आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस, मैंने पिछले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, जब कांग्रेस मतलब जब शासन में था, जब कांग्रेस पार्टी में आया, सत्ता में आया था, when the Congress was in power, तब रेलवेज की हालत क्या थी? कभी आप थोड़ा सा जाके देखिए. द कंडीशन ऑफ रेलवेज, द कंडीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन्स, द कंपार्टमेंट्स, the food catering, each and everything. But after when the another party take over and they are now in the power, now look at the changes that are having.
In the March 29th will be another red letter day in the history of this Indian history. Do you know that? पहली बार 29 या शायद 31 मार्च को भारत पहला अपना हाइड्रोजन ट्रेन का शुरुआत करने जा रहा है. हाइड्रोजन ट्रेन which is of hydrogen. Just and the compartment was simply just like Vande Bharat Express. जिसमें प्राइस हाइड्रोजन की खासियत ये है, स्पीड जबरदस्त है इसका 140 to 150 किलोमीटर पर आवर. इसका एवरेज स्पीड 60. आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम जीरो. इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम, जिसकी वजह से टिकट्स का जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा. और बहुत फास्ट एंड बहुत लाइट ये ट्रेन है, नॉट टू मच हेवी. तो दिस वॉज द फर्स्ट, वो 31 मार्च या 29 मार्च को इंडिया इज गोइंग टू बी द ओनर, मीन्स इंडिया विल गोइंग टू बी द witness of another red letter day in the history. That is the first time India will going to see the hydrogen train that will going to run in between Surat and some other places. I forgot to know that particular places where it's going to stop. Means during it's near about 140 kilometers of a journey from Surat to somewhere else. On 31st or 29th March it will be, and the train is hydrogen train. The compartment the train is completely run on hydrogen. तो सोचो कितना एडवांस्ड अभी इस रेलवे चला गया है, कितना एडवांस आगे ये जाने वाला है. तो आज से कम 10-15 साल पीछे जाओ, जब ये सरकार नहीं था. आई एम नॉट प्रेजिंग दिस सरकार, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि अब चेंजेस कहां पर आ रहा है. ठीक है, तो ये है कस्टमरी चेंजेस. जब पहले था जब इन द पीरियड ऑफ कांग्रेस, वो कस्टमर ट्रेडिशन चला रहा है. रेलवे का इंसान ऑफिस जाता था, पंचिंग करता था, अटेंडेंस बनाता था, घर आ जाता था. आई हैव सीन इन माई ओन आईज, विद माई ओन आईज. और अभी अब जाके देखिए, हर दम कुछ अगर गड़बड़ी हुआ शो कॉज लेटर, कुछ गड़बड़ी हुआ शो कॉज लेटर 5 शो कॉज या 6 शो कॉज लेटर मिला, तुरंत उसका वहां से ट्रांसफर हो जाता है. इतना स्ट्रिक्ट अभी हो गया है. नाउ इट्स वेरी वेरी मींस डिफिकल्ट टू वर्क इन रेलवेज. आपको लगता है इट्स अ वेरी ऑनर्ड जॉब. आई नो इट्स एन ऑनर्ड जॉब now with lot of facilities, but nowadays it's getting very tough because my relatives are there in railways and I am getting information from them only. Now it is day by day it's getting very tougher to work. And the persons who are 50 up on them, they are taking those persons are taking volunteer retirement because it's very difficult to survive in this environment. Whosoever the boss is whosoever is the supervisor is there, they are scolding, they are using means numerous means harsh words to the employees. Okay, the most hectic job is now a railway job, the most hectic job, especially the goods train guard, driver, station masters, goods clerk, then assistant station master, assistant station pilot, co-pilots. Okay, overhead equipments, the maintenance department. Okay, this all clock parcel department, specific. These departments are there where the employees are getting very much means they are now in a very bad and conditions are. They are running under a very bad conditions. Means now the problem is so much that if they want to avail 2 days of a holiday, that CL is not getting granted. Why? Because before you taking your leave or CL and all, you need to make proper arrangements that in place of you, who will going to work in place of you. This is the main criteria. लेकिन आज से अगर 10 साल पीछे चले जाओ, जब कांग्रेस के पीरियड था, तब ये सब नहीं था. एक कस्टमरी पिछले 10-20 सालों से, अभी तो ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है आफ्टर कोरोना, लेकिन उससे पहले अब देखिए कोई मतलब नहीं, बिना मतलब ट्रेन आ रहा है, जा रहा है, कुछ मेंटेन नहीं. एक बार साफ सफाई हो जाता है, ठीक है, ट्रेन पूरा साफ सुथरा होकर निकलता था हावड़ा से. जब वो दिल्ली या कहीं पहुंचता था, पूरा गंदा, मीन्स इतना कचरा फैल जाता था
कि आप देख के आपको उल्टी आ जाएगा। और अभी आप देखिए, क्लीनर, सुपरवाइजर, लॉन्ग जर्नी ट्रेन में हर समय वो वहीं पर स्थित है, 24/7। स्पेशली रिसेंटली in my holidays, when I got a winter vacation, I was been to my Calcutta residence. I was there. I was returning on Gitanjali Express. I was sharing my one experience on that. And during this Gitanjali Express, before also I was returning on Gitanjali Express before 10 years before, but the condition was not like that. But now the condition is completely changed. Every time the cleaner, attendee, and all are there in the available in the train. Means with means after 1 hour, half an hour, after 1.5 hour alternation, the cleaner supers are coming. They are cleaning the floors. They are cleaning the toilets. It's their duty and responsibility. So these are the changes that are going on. तो इस तरह का जो पहले चल रहा था, इसे हम कस्टमरी मोरालिटी कहते हैं। जैसा चल रहा है चलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कस्टमरी मोरालिटी अगर रहता है, फिर क्या होता है, देश की उन्नति कभी नहीं हो पाता। ऐसा अगर मोरालिटी रहता है ना, मोरालिटी में एक खराब है, ये कस्टमरी मोरालिटी जो है खराब है, आप कभी उन्नति नहीं करोगे। यू नेवर एवर गोइंग टू गेट सक्सेस और नेवर एवर यू विल गोइंग टू ग्रो इन योर लाइफ। तो कस्टमरी मोरालिटी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फीडबैक है, कभी ये उतना सही नहीं है। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव मोरालिटी। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्टिव मोरालिटी? Now, this reflective morality, in contrast, involve a conscious and deliberate process of questioning and evaluating our moral beliefs. जैसे मैंने आपको बताया, okay, now we're going to learn reflective morality. This is called, now what is this reflective morality is all about? Now, reflective morality, in contrast, involve a conscious and deliberate process of questioning and evaluating our moral beliefs. हमारे जितने भी बिलीव्स है, प्रिंसिपल्स है, जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चनिंग्स करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही मतलब है, वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर वर्क, वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर वर्क। अभी एक और ट्रेंड आप चल रहा है, जानते हो अब क्या है? क्या है? देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, मैं बेसिकली एक सिंपल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा हूं। रिसेंटली दिस वाज बिन एक अभी एक रिसेंटली इसका एक स्टैट्स आया है। एक ऑर्गेनाइजेशंस में कहा जाता है, स्पेशली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, जब कोई सीएल या छुट्टी ईएल जिसका है, वो अर्न लीव या सीएल जो भी लेना चाहता है, वो तुरंत जब मर्जी हुआ ले लिया, ठीक है, कोई रोकना टोक नहीं। तो ये कस्टमरी हो गया। अब मोरल प्रिंसिपल ये आता है जिसे हम रिफ्लेक्टिव मोरालिटी कहते हैं, उसमें आप थोड़ा सा चेंज आ गया है, एंड दैट वाज वेरी हेल्दी चेंज। क्यों? आपके एब्सेंट की वजह से पहले क्या होता, अगर आप एब्सेंट रहते हो तो उस क्लास में कोई नहीं जाता था, स्टूडेंट वैसा ही बैठ रहता था, या तो घर आ जाता था या कहीं इधर उधर स्प्रेड हो जाता था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता था, बहुत परिस्थिति खराब था। अब धीरे धीरे इसका चेंज आया है, बहुत बड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ है। अब नया एक दौर आया है जिसमें आपको रिफ्लेक्टिव मोरालिटी आपको देखने को मिलेगा। क्या? आप छुट्टी में जा रहे हैं, बेशक आप जाइए, आपका सीएल ईएल जो भी आपका है, मेडिकल है, दैट इज यू कैन अवेल एनी टाइम। नोबडी विल गोइंग टू स्टॉप यू इफ यू वांट सीएल ईएल और मेडिकल। बट वन कंडीशन इज देयर, एक क्लॉज है उसमें। क्लॉज क्या है? अपना जो क्लास है दिन का, आपका जितना क्लास है, चाहे 3 हो 4 हो, आप अपना क्लास अरेंज करके जाइए। नाउ दिस इज बिन मैंडेटरी, this has now been mandatory, and every institutions, whether it is private, government, semi government or public, semi government मतलब public ही है, everybody now follow this reflective morality principles। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव मोरालिटी प्रिंसिपल। आप जाना चाहते हो जाओ, nobody will going to stop you, but the condition is that
यू हैव टू मेक अरेंज ऑफ द क्लास। और एक अच्छा मोरल क्या है मालूम है? कोई मना नहीं करता है, नोबडी स्टॉप टू दैट, नो आई कैनॉट टेक योर क्लास, सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जब जा रहे हो वो आपको हेल्प कर रहा है। किसी दिन आपको जब जरूरत पड़े, अगर वो ना बोल दे तो आप तो जा नहीं सकते हो, आपको किसी तरह से क्लास अरेंज करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? आपको पूरा एब्सेंट, आपका छुट्टी गारंटेड नहीं होगा, यू विल बी एलडब्ल्यूपी लग जाएगा। एलडब्ल्यूपी मतलब लीव विदाउट पे, एलडब्ल्यूपी जिसे हम कहते हैं। ओके, ये आ जाएगा। तो ये एक अच्छा है, एक रिफ्लेक्टिव इसमें मोरालिटी भी हमको दिख रहा है, एंड रिफ्लेक्टिव मोरालिटी तो है ही है। तो क्या हो, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, स्टूडेंट्स आर know that whenever I come to this college means the classes will happen, the classes will there, I had to do the classes, otherwise may my attendance will going to cut. Okay, this is called reflective morality. Understood अभिजीत? whether you Yes, are sir. listening, समझ में आ गया रिफ्लेक्टिव मोरालिटी? मैंने इतना Yes, टाइम sir. इसलिए लिया है क्योंकि ये बिल्कुल नया है। रिफ्लेक्टिव मोरालिटी और कस्टमर मोरालिटी आपके लिए बिल्कुल नया है। हमने मोरालिटी सुना है, लेकिन इसका बाइफर्केशन, इसका जो इतना वेरिएशंस है, हमें नहीं मालूम था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल करके बताया। क्लियर है? मुझे नहीं लगता भूल पाओगे। Yes, sir. Clear है। तो अब बताओ, देश को चलाने के लिए क्या कस्टमरी मोरालिटी चाहिए कि रिफ्लेक्टिव मोरालिटी चाहिए? पहले बताओ। Yes, sir. हेलो। देश को हेलो। आगे बढ़ने के लिए, हाँ सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिएबल? अच्छा ठीक है, हो सकता है कुछ टेम्पोररी इश्यूज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। सो इट रिक्वायर टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड आवर एक्शंस and to challenge the assumptions underlying those principles. This process allows us to refine our moral compass and make more informed ethical decisions. ये reflective morality के वजह से हमारे जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हमारे जो मोरालिटीज है वो बहुत रिफाइंड तरीके से वो आगे आता है, and with proper ethical decisions. Okay, this is called morality, reflective morality. Hope you understand. Ma'am, please go to the next slide. Okay, now what is ethical relativism, normative ethical systems? देखो, these are quite related to something we are going towards the सर philosophy. आप कुछ सर आप कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था कि क्या इस देश को आगे बढ़ने के लिए हमें किस मोरालिटी को बेस करना पड़ेगा, किस मोरालिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा? कस्टमर मोरालिटी, कस्टमरी मोरालिटी और रिफ्लेक्टिव मोरालिटी, ये मेरा सवाल था। किस मोरालिटी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे? रिफ्लेक्टिव सर। यस, दैट इज माय आंसर। मतलब तुमने सुना है, अगर तुम कस्टमरी बोलता यस तो सर। तुम नहीं सुनता। यस, रिफ्लेक्टिव नो सर, मोरालिटी। उस समय इसे सर ही, वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा था, कट कट के आ रहा कोई था। बात, आई अंडरस्टूड। तो हमें हर समय इस रिफ्लेक्टिव मोरालिटीज में को बेस करके आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अच्छाई यस सर। मोरालिटी अच्छा है, लेकिन हर एक जगह मोरालिटी अच्छाई अगर आप दिखाओगे तो हो सकता है आपका उसका मिसयूज हो जाए। बी काइंड, एक कहावत है, बी काइंड बट ऑलवेज बी काइंड इज नॉट गुड। एक कहावत है, फ्रेज है, मैं इसका सार आपको बता रहा हूं। बी काइंड इज गुड, आप दयालु हो ओके, लेकिन हर जगह, हर समय, हर वक्त आप दयालु बनोगे वो आपके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट भी होना पड़ेगा। बी काइंड इज गुड बट नॉट ऑलवेज। Okay, now this is the next one is ethical relativism and normative ethical system. हम ये सब जो तुम्हारे चैप्टर में इंक्लूड हुआ है एमबीए में, दिस क्वाइट रिलेटेड टू, मुझे लगता है ये थोड़ा सा फिलोसॉफी ओरिएंटेड पेपर्स है। फिलोसॉफी ओरिएंटेड पेपर में नॉर्मेटिव एथिकल, एथिकल रिलेटिविज्म का थोड़ा सा जिक्र है, एथिक्स का थोड़ा सा जिक्र है। तो मुझे लगता है इस पेपर को थोड़ा सा फिलोसफी के साथ या लॉजिक के साथ, पेपर के साथ जोड़ा गया है। दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे। नाउ व्हाट इज दिस एथिकल रिलेटिविज्म? नाउ देखो क्या लिखा है,
Ethical relativism is the view that there are no universal ethical principles. It argues that morality is relative to individual cultures, societies, or groups. According to this perspective, what is considered right or wrong can vary depending on the context. इसका मतलब है एथिकल का जो रिलेटिविज्म है इसका है कि इस एथिकल में, इस प्रिंसिपल में कोई भी एथिकल या यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? एवरी कल्चर, एवरी ट्रेडिशंस, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन एथिकल रिलेटिविज्म। ठीक है? सोसाइटीज और ग्रुप, इसका अलग अलग रिलेटिविज्म या अलग अलग प्रिंसिपल है। ठीक है? मतलब क्या है? कोई यूनिवर्सल लॉ बना ही नहीं, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना ही नहीं। इस तरह का जो प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड एथिकल रिलेटिविज्म। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज रोड्स जो बना हुआ है, रोड्स, ट्रैफिक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हर एक सोसाइटी के पीपल के लिए, हर एक ट्रेडिशंस का पीपल के लिए, हर एक कल्चरल पीपल के लिए बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। ईच रूल यस मीन्स सर। लॉज आर फॉर ऑल। अब फर्ज करो यहां पर हम एथिकल रिलेटिविज्म लगा दे। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम जो है वो ओवरटेक कर सकता है, जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे ब्रेक कर सकता है। हिंदू जो है वो नहीं कर पाएगा। सिख जो है वो हफ्ते में 2 दिन करेगा। ईसाई जो है हफ्ते में 3 दिन करेगा। इस तरह का अगर लॉ बनता तो देश की आज हालत क्या होता? इसीलिए एक देश एक कानून बना हुआ है। एम आई क्लियर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जानते थे कि अगर यहां पर कुछ भी छेड़खानी किया जाए तो बहुत सारा लॉज अलग से बनेगा और उस लॉ को तोड़ने के लिए अलग फिर लॉ बनेगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक नियम बना दिया था दैट वट एवर द लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड, every individual, every society, every caste of people, every traditional peoples, whosoever is there, he or she had to follow this law, had to follow these principles. ठीक है? तो एथिकल रिलेटिविज्म वो होता है जहां पर इस प्रिंसिपल का कोई वैल्यू नहीं होता है, या फिर इस यूनिवर्सल लॉ का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एथिकल रिलेटिविज्म, every law or every morality or every principle depends on every individual, every customs, every traditions, every people, है ना? तो दिस इज इस टाइप ऑफ एथिकल मोरल एथिकल रिलेटिविज्म, इस तरह का मोरल प्रिंसिपल्स को हम एथिकल रिलेटिविज्म कहते हैं। इस तरह का मोरल प्रिंसिपल्स को हम एथिकल मोरालिटी रिलेटिविज्म कहते हैं। ठीक है? अब इस तरह का कानून जो है, इस तरह का मोरल जो एथिकल्स है, वो डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन। लॉस बिल्कुल सही है, लॉस हर एक के लिए इक्वल है, लेकिन आप जब अपना ट्रेडिशंस, अपना कल्चर, अपना इंडिविजुअल्स आप जब देख रहे हो, तब उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स जो है कुर्ता और पजामा पहनते हैं, और कुर्ता भी छोटा थोड़ा सा, पजामा पहनते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज देयर कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो जीन्स भी पहनते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये कल्चर ट्रेडिशन हो गया है, चेंजेस हो रहा है। इस मोरल एथिक्स को हम रिलेटिविज्म, एथिकल रिलेटिविज्म कहते हैं। अब फर्ज करो कुछ और मुस्लिम जो है वो मुस्टैच, दाढ़ी, जो नीचे का जो पोर्शन है, चीक वाला जो पोर्शन है, वहां से दाढ़ी वो बढ़ाते हैं। उसका वो कस्टम है, ट्रेडिशन नहीं है उसका।
कोई इसका मोरालिटी का या प्रिंसिपल मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है. दैट इज देयर कस्टम, दैट इज देयर ट्रेंड. If they want, they can keep this type of beard. Okay, nobody will going to give interfere or nobody will going to give object. ठीक है. हम उसी तरह हम जब बियर्ड रखते हैं तो हम सामने मूछ रख के बगल में रखते हैं. अगर बीच वाला मूछ उड़ा दे तो हम भी उस तरह का मोहम्मडनी लगेंगे. ठीक है. तो इस तरह का जो अलग अलग प्रिंसिपल्स जो बनाया गया है, हमारे कस्टम्स, हमारे सोसाइटीज, हमारे फोर फादर्स ने जो बना के गया कानून, जिसमें कोई पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इस तरह का मोरल एथिक्स को हम एथिकल रिलेटिविज्म कहते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम. नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट, a normative ethical system seek to establish universal ethical principles or rules that should guide our actions. These systems often provide a framework for evaluating ethical dilemmas and making moral judgments. Example include consequentialism, deontology, and virtue ethics, each offering distinct approach to ethical reasons. अब यहां पर आ जाते हैं नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम. ये एक ऐसा एथिकल सिस्टम है जो हमें मदद करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करने में, और या तो फिर रूल्स दैट शुड गाइड आवर एक्शन. ठीक है. या फिर जैसे कानून, लॉ. ठीक है. कानून जो है, लॉज जो बनाया गया है, वो एक यूनिवर्सल कानून बनाया गया है फॉर ऑल द इंडियन पीपल्स. दैट दिस इज द कंडीशन, दीज आर द लॉज you need to follow. It's compulsory. If you fail to follow these rules, against you the actions will be taken. जैसे मैंने बताया कि आप अगर ट्रैफिक आप ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब है जो कानून पीपल है, द पीपल ऑफ लॉ, मीन्स ओके, they will come to you and they will never ever going to ask you that from which community you are, from which culture you are, what is your traditions, what is your ethics. They will never ever going to ask. They simply drag you out to the court, drag you out to the police station, drag you to the police station and ask for the challan, ask for the fines and all. It doesn't matter whether you are a Mohammedan, whether you are a Bengalis, whether you are some other caste. बिकॉज आपने लॉ तोड़ा है, मतलब आपको पैसा या जुर्माना भरना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी सेंट टू जेल. इस तरह का मोरालिटी, इस तरह का प्रिंसिपल्स को, जहां पर हर एक पीपल के लिए एक ही कानून बना गया है और जिसे फॉलो करना कंपल्सरी है, इस तरह का मोरल प्रिंसिपल्स को हम नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम कहते हैं. नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम. अब बताओ कोई डाउट है इसमें? मिस्टर अभिजीत, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? पक्का? ये बहुत नया है, नया चीज है आपके लिए कि एथिक्स पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंट एंड वेराइटीज ऑफ एथिक्स आर देयर. ठीक है, ये आपको समझना है. जस्ट मिनट वेट. अच्छा, ओके. यस मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस. नाउ एथिक्स इश्यूज इन डिफरेंट स्पीयर्स. देखो यहां पर मैंने एक बहुत सुंदर आपको एक डायग्राम दिया है. मीन्स डिफरेंट स्पीयर्स. स्पीयर्स का यहां मतलब क्या होता है? गोला. तो गोला, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ गोला? गोला यहां पर मतलब क्या है? यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है. मतलब को समझना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, नाउ यहां पर स्पीयर का मतलब होता है यूनिवर्स, द ग्लोब.
स्फीयर मीन्स द ग्लोब, ग्लोब मतलब यहाँ रेफरेंस टू यूनिवर्स। इसका मतलब है क्या है, एथिक्स इश्यूज, एथिक को लेके डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में, मीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्रीज में, बाहर अंदर जो भी कंट्रीज है उनका क्या क्या इश्यूज है, ये जानना है। ये चैप्टर इलाबोरेट बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट एंड प्रिसाइज किया, अदरवाइज इसे कंप्लीट करना नामुमकिन था। क्योंकि ये इश्यूज का मतलब, ये जब मैंने चैप्टर जब देख रहा था, इसे बना रहा था, आई फाउंड दैट स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज है जिसको लेके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, जैसे अफ्रीका, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, इंडिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा 9-10 कंट्रीज था, रशिया, यूक्रेन, नॉट यूक्रेन, रशिया, चाइना, इनका डिफरेंट क्या क्या मोरालिटीज है। अब मैं अगर एक एक चीज यहां पर इंक्लूड करने जाऊं स्लाइड्स में, तब तो 50 से ज्यादा स्लाइड्स हो जाएगी। उतना वक्त तो है नहीं, सिलेबस तो टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, अभी और 3 यूनिट्स बाकी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई मेड इट शॉर्ट, सिंपल एंड प्रिसाइज। ठीक है, मुझे नहीं लगता उतना डेप्थ आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक कंट्रीज का 3 एथिक्स वैल्यूज होता है, बिजनेस, लीगल, मेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये पूरा निचोड़ के आपको ये पर नोट्स बना के दिया है। बिजनेस, लीगल, मेडिकल, ये दुनिया में हर एक जगह इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिजनेस ऑब्वियसली, लीगल कानून हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज वो तो कंपलसरी है। अब हर एक देश में इसका डिफरेंट डिफरेंट मत है, इसका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट परसेप्शंस है। जैसे बिजनेस एथिक्स, now business ethics deals with moral principles and values that guide business decisions and actions. It examines issues related to fair competition, consumer protections and environmental responsibilities. ये जो कानून यहां पर बताया गया है, लॉज बताया गया है, एथिक्स बताया गया, ये हर एक जगह फॉलो होता है। मैंने शायद तुमको तुमको या कोई और को शायद इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मैंने बीबीए, एमबीए, बीबीए में शायद किसी को पढ़ाया था। उसी सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, हर एक बिजनेस एथिक्स में ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना मेरे कंट्री, if my own country India is not maintaining this moral principles, not maintaining this moral values, then you can, our India cannot export the goods in a principle way, in an ethical way. Okay, for that reason both the countries should maintain the same dilemma, both the countries should maintain the same ethics, both the countries should maintain the same principles and values, then only the business can be done, the business can be dealt, the business can be go extended. अगर मैं डिसोबीडियंट हूं, मैं अनलॉफुल काम कर रहा हूं, मैं अपना प्रिंसिपल्स नहीं मान रहा हूं, मेरा भारत देश अगर ये सब नहीं मान रहा है, आप भूल जाइए कि आपका जो सामने जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, वो आपसे इस तरह का प्रिंसिपल्स मोरालिटी रखेगा। नो, जब एक देश के साथ दूसरे देश का जब एग्रीमेंट साइन होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट्स आर देयर। उस देश का कानून, इस देश का कानून सिमिलर वे में काम करेंगे, ये मतलब उस एग्रीमेंट्स में लिखा होता है। इसलिए बिजनेस एथिक्स जो है हर एक कंट्रीज के लिए सेम होता है, इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल एथिक्स, द सेम थिंग। क्या है लीगल एथिक्स? कंसर्न द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ लॉयर एंड जजेस। बस exactly, it emphasizes fairness, integrity and the protection of client right. Obviously in every country or any if you go to every country, anywhere in the country, they have their laws, they have their integrity, they have their customer protection, consumer protections or the protection act of the clients. तो यहां पर भी कानून सेम है। हाँ, धाराएं अलग अलग हो सकता है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड अकॉर्डिंग टू 406, 302, 309, ये सब अलग हो सकता है, लेकिन
लॉ जो है वो लगभग सेम है। यहाँ पर जैसे अगर आपने किसी को मर्डर किया है, आपने किसी को, यहाँ पर अचानक से डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता है, वो लेंदी प्रोसेस है। आपको आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी कुछ ओकेजन्स में दिया जाता है, लेकिन कानून सेम है। आपको पुलिस कस्टडी में लेगा, आपसे पूछताछ होगा, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, एवरी कंट्री फॉलो दिस प्रोसेस, लेकिन उनका मत थोड़ा अलग। अगर कहीं पर सपोज उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या अफगानिस्तान में कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो वहां पर एक ही पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी। चॉप चॉप स्क्वायर बोल के एक जगह है जहां पर एग्जीक्यूशन होता है, अभी भी ह्यूमन एग्जीक्यूशन लाइव होता है। ठीक है, तो दिस इज द कानून। नेक्स्ट है मेडिकल एथिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ को लेके। तो ये भी एथिक्स, यहाँ पर जो मोरालिटी प्रिंसिपल्स जो भी है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, बराबर है। क्या है कि मेडिकल एथिक्स एड्रेसेस द मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इट इन्वॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू पेशेंट्स ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द यूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ओके, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या एथिक्स में, किस एथिक्स, मेडिकल एथिक्स क्या है? गाइडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल, कोई दूसरे कंट्रीज जो प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है या फिर खोज कर रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दे नीड टू मेंटेन द सेम लॉस एंड एथिक्स। ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इश्यूज रिलेटेड पेशेंट्स ऑटोनॉमी। ओके, यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स का कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, उसे सॉल्व किया जाता है, चेक किया जाता है। कुछ भी अगर ऐसा है, उसको फिर ट्रीटमेंट्स दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। और ये जो रूल्स नॉर्म्स है, ये हर एक कंट्रीज में बिल्कुल बराबर है। इसीलिए मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, मेडिकल, लीगल एंड बिजनेस। ऑब्वियसली आपको अगर तबीयत खराब है, आपको बुखार है, आप अगर अमेरिका चले जाओ, वहां पर भी बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम होगा जैसे यहाँ पर होता है। डॉक्टर विल एग्जामिन यू विद स्टेथोस्कोप, दे विल गोइंग टू आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस, जो यहाँ का डॉक्टर भी करेंगे सेम क्वेश्चंस। हाँ, एक जगह चेंजेस होता है। यहाँ पर अगर कुछ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे पैरासिटामोल, क्रोसिन्स, पैरासिटामोल 500, कुछ इस तरह का जो मेडिसिन है, वो वहां पर, यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। वहां पर कुछ दूसरा, उनका कुछ लोकल्स जो मेडिसिन है, वो हमको प्रिस्क्राइब करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द ट्रीटमेंट इज सेम, द प्रैक्टिस इज सेम, द प्रिंसिपल इज सेम, द वैल्यू इज सेम, द मोरालिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अंडरस्टूड? सो हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ ethical issues in different spheres. समझ में आया? Is it clear to you, Abhijit, if you are listening to me? Yes, sir. Any doubt? ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लेना दोबारा, रिकॉर्डिंग मैम डेफिनेटली भेज देंगी, सुन लेना दोबारा। अगर कोई जगह या कोई पॉइंट्स में आपको डाउट लग रहा है, तो नेक्स्ट क्लास पे हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है? Okay, sir. थैंक यू, हैव अ नाइस Thank डे। you, sir.